Hi everyone, welcome back to our series. Welcome to Law Prep Tutorial. This is your mentor, host and friend Harshvardhan Tripathi. As I have been telling you, I am taking you through a lot of videos here, a lot of sessions here. In a very short duration, I am going to decode the mystery behind CLAT. Critical reasoning is one section where I don't know why students face a lot of problem during their preparation as well, and even after they appear in this examination, they come out of the examination hall and they say, sir, despite practicing so much, critical reasoning section was still out of hand and I was not able to solve it, and I was spending a lot more time than required on this. Now it is because of a lot of you can say myths, or you can say some sort of hardwired programming is already done. It's also because if you study critical reasoning from multiple sources and multiple you can say faculties, then they will give you their own way, their own tricks to approach that particular section. That's one way to solve critical reasoning, where you can rely on somebody's approach. But the preparation with respect to CLAD, I would suggest, and I would rather insist that please focus on the past year papers, the way I am taking you through these passages, these topics, and try to gauge and maneuver your preparation based on what you are understanding from this and what I'm trying to tell you. Because when we appear in mocks and when we practice multiple mocks, we tend to believe that each passage will have 5 questions, but it is not the case anymore, because CLAT consortium has only limited, or you can say defined, their syllabus based on percentage. कि भाई हमारे 25% ये पूछेंगे, 20% ये पूछेंगे, और 10% क्यूटी पूछेंगे. इस तरह का उन्होंने सेक्शन डिवाइड किया. तो उन्होंने क्वेश्चंस नहीं बताए अपने को, उन्होंने अपने को नंबर ऑफ पैसेजेस नहीं बताए. तो उस जगह पे क्या होता है, जब पेपर का पैटर्न या ट्रेंड हल्का फुल्का भी चेंज होता है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट बैठा होता है, क्योंकि एक सेट पैटर्न पे वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसको बहुत कहते ना एक पैनिक अटैक आ जाता है. क्योंकि बच्चे छोटे हो आप लोग ना, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस नहीं किए. अगर आप स्कूल में ओलंपियाड्स जीते हुए आए हो तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार बबल कैसे करते हैं, यार क्या कैसे अपने काम और कंपोजर को मेंटेन करते हैं एग्जामिनेशन में. बट जो बच्चा पहली बार दे रहा है, तो उसको तो यार एक सेट पैटर्न से अलग कुछ भी मिलता है ना, तो वो शॉक में चला जाता है. तो वो चीज़ ना हो आपके साथ इस एग्जामिनेशन में. तो बेस्ड ऑन दैट, to help you with that, I am providing these insights to you, which you could have done by your own self. But after this video, if you do that, it is definitely going to play a huge role in it, easing your preparation. So in this session, what are we going to do? We are going to decode the easiest, you can say, CLAT paper. In the history, CLAT 2024 was the easiest, and this is the reason that cutoff soared so high. Cutoff went high and it was very difficult for other candidates to scale up. Usually we used to see selections in 85 marks if you are a general category. But this year what happened, in 85 marks nobody got NLUs. I mean, they did not land up into NLU. And Jay Bora, who is from Law Prep Tutorial itself, who scored All India rank 1 in this particular examination, did tell me this, that he had only 2 to 3 questions incorrect in CR section, which is a huge feat to achieve based on what others perform and how did AIR 1 performed there. So, taking the baton forward, or you can say keeping the momentum, what are we trying to tell you is that even though the CR section was easy, right? Yet there were 2 unconventional passages, or you can say the way they were asking questions were a little different, and that is how it got a little tough for students. They thought that we are marking the obvious answers, and as per their understanding, the obvious answers were incorrect. It was not because the obvious answers were incorrect or the examining body does not know how to frame the questions, but then again, you missed the pulse, you missed the context in the newspaper. फिर से मैंने आपको मतलब मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा इस बात को. अगले 6 महीना आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर को क्लैट है. अगले 6 महीने का न्यूज़पेपर का जो थीम है, जो एडिटोरियल्स हैं, उनको कैच करके चलना है अपने को. वो आप नहीं छोड़ सकते. प्लीज डू नॉट स्किप on summarizing and reading the editorials and reading the newspapers on a daily basis. Doesn't matter if you're attending the classes, if you're seeing the analysis and everything, do all of that thing. But if you're not sitting with newspaper, if you're not reading by your own self, trust me dear, paper तुमको देने का है. पैसेज जब तुमको मिलेगा ना,
तुम्हारे भेजे पे लोचा होगा, लफड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर होगा, वो नहीं होने देने का। ठीक है, उसके लिए क्या करना है भाई, अखबार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई, डेली पढ़ना है। कितनी देर देनी है, 1.5 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जो सोर्स के जो थीम्स आती है ना, वो पता रहती है तो आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं। तो जब पेपर डुएबल हो जाए बॉस, तुमको लगे कि पेपर इजी आ रहा है, तो खुश नहीं होने का, दुखी होने का। क्यों दुखी होने का? क्योंकि फिर यार अपने को ना एक्यूरेसी बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि एक्यूरेसी कहते हैं मैच्योरिटी की तरह होती है। जैसे मैच्योरिटी आते आते आती है, वैसे एक्यूरेसी भी प्रैक्टिस के साथ आते आते आती है। तो एक्यूरेसी को क्योंकि हम कभी यार मेंटेन नहीं कर सकते, कभी हम टारगेट नहीं सेट कर सकते कि यार हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे 95 करेक्ट ही होंगे। तुम कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे आंसर सही होते हैं, आंसर की के हिसाब से आंसर चेक किए जाते हैं, राइट? तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है। लेकिन पेपर डुएबल था तो अपने को इसी तरह फोकस करना था। मैं बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप सिर्फ रीड करके बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर सकते थे। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए अपने को। जैसे ये पहला पैसेज आया, सबसे खतरनाक, आई वुड से रादर मेरी भाषा में भाई, बिकॉज वी रीड द न्यूज़पेपर्स फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जीके पर्सपेक्टिव। तो ये ऐसे पैसेजेस मेरे को भाई फालतू लगते हैं। क्या कि वर्ड्स रिमेन एनिग्मा, देयर प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर इज अ यूनिक मिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स का यूज किस तरीके से करना है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये अपने को पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है, पहला ही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि यार वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन एंड कॉम एंड ह्यूमंस, दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू हिट। ओके, द पैसेज इज गोइंग टू हिट। ये पैसेज भले ही शॉर्ट लग रहा है अपने को, लेकिन इस पैसेज को कम से कम 3 बार, 3 times you had to read, you will have to read to solve, to be able to solve, right? Scriptures say that word is the world. I say world within the word is abode of faith. अब ऑथर का बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि भाई शब्दों का चयन करिए, सोच समझ के बोलिए, और इस तरह की कुछ बातें हैं। तो वर्ड्स रिमेन एन एग्मा नाम की एक ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे, जिसके ऊपर ये पैसेज था। लेकिन अब आप ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ये क्वेश्चन अगर आप इनकरेक्ट कर गए दोस्त, तो गेम गड़बड़ है, आप गलत कर ही नहीं सकते। क्यों? History of human language, impact of the words on human existence, the importance of storytelling, the mystery of human cognition. Mystery of human cognition, human senses के बारे में, cognition मतलब sense। अब देखो अपने को word cognition ही नहीं पता, तो अपन तो पहले ही कंफ्यूज हो गया यार कि डी क्या है। कॉग्निशन का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं यार, जो 5 सेंसेस है हमारे पास, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी सेंस करने की एबिलिटी, उसके बारे में तो यहाँ पे बात नहीं की गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, अब ये वर्ड स्टोरी टेलिंग कहाँ पे है? ये वर्ड स्टोरी टेलिंग कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। बार बार वो शब्द की बात कर रहा है, राइट? एन एंगेजमेंट विद वर्ड इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, एन्चांटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड। अभी डॉन्टिंग का मतलब ही नहीं पता अपने को, कैप्टिवेटिंग का मतलब ही नहीं पता अपने को, तो गड़बड़ होगा ना बॉस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अखबार पढ़िए, और अखबार जब पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, अपनी वोकैब बिल्ड करनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं वर्ड पावर मेड इजी पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन वो तुम्हारे लिए एडेंडम है, एडिशनल सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर। अभी भी ये टमल्टुअस वर्ड आ गया, अब ये भी नहीं पता अपने को, तो कंफ्यूजन होता है। और ऐसे में क्या होता है? कुछ नहीं, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हम क्या होते हैं? स्लो डाउन होते हैं बॉस। क्या होते हैं? स्लो डाउन होते हैं, जो अपने को एग्जामिनेशन में को देखना है कि वी डोंट हैव टू स्लो डाउन आवरसेल्व्स, राइट? बट जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, इट्स अ डायरेक्ट, यार देख के लग रहा है कि हाँ शब्द का ह्यूमन पे क्या असर पड़ता है, ये तो लाइन 1 पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस अपन गलत नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, जब भी पैसेज शॉर्ट आए, अच्छी बात है, क्या करेंगे हम? पैसेज को रन थ्रू करेंगे फटाफट, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछ रहा है। उसके बाद पैसेज को आप दोबारा पढ़िए, बिकॉज पैसेज इज स्मॉल, यू कैन रीड इट एटलीस्ट 3 times, आराम से आप कर सकते हैं। एंड देन क्या करना है आपको? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन you have to follow, right? And this has to be done within 5 to 7 minutes for each passage. Now look at the next passage. Again, as I say, the pulse, the trend. August 2023 में ये पेपर का
ये आर्टिकल है, पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए. नाउ नोबडी रिकमेंड्स यू टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया. डज एनीबडी रिकमेंड? यस, वी रिकमेंड इन द स्टार्ट कि आप प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, बट हम उसके बाद इमीडिएटली कहते हैं कि प्लीज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पे आप क्या करिए, स्विच ओवर करिए. लेकिन सर टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछ दिया तो क्या अब अपने को टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए? अरे बेटा तुम एक बार जरा इसकी थीम देखो ना, क्या कह रहा है? अनलेस इंडिया डेवलप्स डोमेस्टिक एआई हेफ्ट, इट वुड नॉट प्ले एनी मीनिंगफुल पार्ट इन द ग्लोबल रेगुलेटरी एफर्ट्स. अब ये थीम कहाँ से आई? तो हम बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ाता था मैं, और करंट अफेयर्स में मैंने बच्चों को बोला था ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन पे नजर रखना. किस पे नजर रखना? ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन पे. ये ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन क्या है भाई? यूनाइटेड किंगडम ने एआई समिट कराया था. एआई, दुनिया की पहली एआई समिट कराई थी 2023 में. तो ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन साइन हुआ था. ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन इसलिए भी था क्योंकि क्लैट में प्रीवियसली आपसे एलन ट्यूरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और एलन ट्यूरिंग एनिग्मा मशीन बड़ा ही जेनरिक और रिलेटेबल टॉपिक है, द गॉड फादर्स ऑफ एआई एंड ऑल ऑफ दैट. और उसके बाद एक न्यूज़ पता है क्या थी? इस तरह के भी आर्टिकल्स आ रहे थे कि इंडिया, चाइना, यूएस और ईयू, ये चार ऐसी जगह हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के तौर तरीके काफी अलग अलग हैं. उसके बाद G7 मीटिंग होता है, कहां पे? हिरोशिमा में. और हिरोशिमा एआई प्रोसेस नाम का एक जेनरिक एग्रीमेंट करते हैं वो लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रोकथाम करना है अपने को. चैट जीपीटी तो ट्रेंडिंग में था ही था, और यूरोपियन यूनियन ने एआई पे रेगुलेशन बनाई दिया था. तो पल्स पकड़िए अखबार से, वो आपका ट्रेंड डिसाइड करता है, और जब आपके पास ट्रेंड होता है हाथ में तो आपका स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका रीडिंग का क्या हो जाता है दोस्त? फास्ट हो जाता है. तो अखबार को देख के घबराओ मत बॉस, वही कहते ना एकमात्र साधन है तुम्हारा, एकमात्र सारथी है जो तुमको तुम्हारी इस प्रिपरेशन में काफी ज्यादा आगे लेके जाएगा, और तुम्हारे डायनेमिक्स चेंज आएंगे. तुम तो क्या करते हो यार, अखबार को लोड की तरह लेते हो. अरे मजे में पढ़ने का, कहानी की तरह पढ़ने का, पूरे दिन भर अखबार को पढ़ते रहने का. एक आर्टिकल पढ़े, मूड खराब हो गया, बोरिंग लगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे रुक जाओ, आधे घंटे बाद फिर एक आर्टिकल पढ़ो. कौन कहता है 3 घंटे एक साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो? समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो ये वाला सवाल, मोस्ट अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आई कैन से, देखते से ही हालत खराब हो गई थी. देखते से ही स्टूडेंट्स बोले अरे सर ये क्या पूछ दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या है? तो ये एक तरीके का मिक्स्ड बैग था, जहां पे आपको बोला कि मान लीजिए आप एक कंसल्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, और उस कंपनी में प्रोडक्शन एफिशिएंसी में घटत हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है. कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, और मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न्ड है कि यार हमारा ओवरऑल आउटपुट कैसा होगा. आपको टास्क दिया गया है कि आपको इस डिक्लाइन का रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है और सॉल्यूशंस रिकमेंड करने हैं. अब यहां पे आपका अगर दिमाग काम, कंपोजर और पेशेंट नहीं है ना, तो बेटा तुम ना गड़बड़ कर दोगे. और बच्चे आके यही बोलते हैं सर ये सब क्या कर रहा है, ये तो अपन ने प्रैक्टिस ही नहीं करा, ये क्या? अरे सबसे ईजिएस्ट था ये, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज द मोस्ट ईजिएस्ट ऑफ द पैसेजेस. आराम से करना था कि भाई ये कंपनी है, प्रोडक्शन बेकार हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अपने को उसमें कंसल्टेंट की तरह जाके बताना है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओ. सर हमें बिजनेस स्टडीज नहीं समझ में आती, सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझ में आती. समझने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत ही नहीं है. जरा एक क्वेश्चन देखो ये इसी पैसेज का, ये क्वेश्चन देखो कैसा है. ये क्वेश्चन कह रहा है आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में शिकायत करने लग जाएं तो उसका कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट क्या होगा. इट इंडिकेट्स दैट कंपनी के कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग क्वालिटी इश्यूज. हाउ द हेल. हाँ, टेस्ला की कार में आग लग रही है, टेस्ला की कार में आग लग रही है तो टाटा की कार में भी आग लग रही होगी. ये कैसी बात होती है, समझे? तो ये तो एलिमिनेट हो गया ना. कॉमन सेंस क्या रखेंगे? जिंदा दिमाग बहुत दूर तक लेके जाएगा दोस्त, तो इसको नहीं जाने देने का. कॉमन सेंस, कंसिस्टेंसी, रीडिंग, है ना. कॉमन सेंस, कंसिस्टेंसी, रीडिंग और थीम्स को पकड़ के चलना इज द वे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. It suggests that the company's products are meeting customer expectations. भैया वाह, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल हो जा रही है, पर शिकायतों की लिस्ट भी खत्म नहीं हो रही. ऐसा कैसे हो सकता है? 2 एलिमिनेट हो गए. अब तुमको सी और डी में चूज करना है. बोलो. अब जरा देखो, तुम्हें अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी से मतलब है.
It shows that the company's automated system is performing well. They are not performing well. तभी तो complaints आ रही है. बचा क्या यार? It may lead to loss of customers and reputation damage. ऐसा question भी बच्चे गलत करके आए. And I don't understand how. How on earth? ये पाप है, पाप. 7 जन्मों तक इसका कोई हिसाब नहीं दे पाएगा. ऐसे सवाल गलत करके आओगे तो 1 नंबर ऐसे क्लैट कराए, जा मुन्ना ले ले मार्क्स. तो तू ऐसा क्वेश्चन मत गलत कर मेरे भाई. 1 मार्क्स बहुत ईजिली निकाला जा सकता था ऐसे बकवास पैसेज पे भी. और इसके सभी क्वेश्चंस, अब हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे. आप बोलेंगे यार ये क्या, आप खुद सॉल्व करना ना उठा के, आपको खुद समझ में आएगा कि अरे तो ईजी था. लेकिन क्लाट के पेपर के टाइम पे ईजी लगे वो ज़रूरी है. समझे बात को? बाद में तो सभी कर लेंगे, पेपर के टाइम पे ईजी लगना चाहिए. पेपर के टाइम पे इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार काम कंपोजर रखने का. अब देखो ये वाला है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सितंबर 2023 से पूछा. एग्जाम होता है दिसंबर में, नवंबर अक्टूबर सितंबर, 3 मंथ्स बिफोर, 3 महीने पहले का एडिटोरियल पूछा कोटा सुसाइड्स के ऊपर. बढ़ रहे थे कि नहीं? कोचिंग स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैन्युफैक्चर इनसिक्योरिटी, मूविंग बियॉन्ड द टायरनी ऑफ मेरिट माइट हेल्प. तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में ओवरहॉल मांगता है, ऐसा आर्टिकल हमारे पास आया. और सुसाइड्स हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें. नीट का रिजल्ट आया और उसके बाद भी बहुत सारे आप देखेंगे 12th का रिजल्ट आने के बाद भी, सॉरी पापा आई कुड नॉट क्लियर IIT, सॉरी पापा मेरे 90% नहीं आए. 16 साल 17 साल के बच्चे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की जगह पर न्यूज़ आ रही है, हरियाणा में न्यूज़ आ रही है. तो उस तरह की चीज़ों को आप देखिए. अगेन मैं बोल रहा हूँ क्या, सोसाइटल मुद्दे, सामाजिक दिक्कतें, सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली चीज़ों पे अपनी आंखें गड़ा के रखिएगा, क्योंकि वही है पल्स पेपर की. ठीक है? तो हमने क्या सीखा इस सेशन में? हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर पैसेज में 5 सवाल हों, ज़रूरी नहीं है कि 25 क्वेश्चन हैं तो 5 पैसेजेस हों, क्योंकि क्लास 24 ने सारे तरह के ट्रेंड्स में एक बहुत तेज़ी से चेंजेस किए. शॉर्ट पैसेजेस अपने को लगते हैं ट्रिकी, लॉन्ग पैसेजेस ईजी होते हैं. ये रूल है, ये चेंज नहीं होता. पैसेज छोटा है तो ट्रिकी है, लेंदी है तो ईजी क्वेश्चंस होंगे. इसमें सब कुछ है आपका. शॉर्ट पैसेजेस में, जैसे मैं कहता हूँ, शॉर्ट पैसेजेस में तुम्हारा गुणा भाग सारा का सारा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन डिसाइड करता है, कितना तुमको समझ में आया. और लॉन्ग पैसेजेस क्या डिसाइड करता है? लॉन्ग पैसेजेस कहता है कि बाबा तुम्हारे पास रीडिंग स्पीड है कि नहीं है. तो कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड एक सिक्के के 2 पहलू, फ्रंट एंड ओवर साइड ऑफ द सेम कॉइन है. डोंट एस्टिमेट द डिफिकल्टी बाय मेयरली लुकिंग एट द पैसेज, बिकॉज पैसेज नहीं, इट इज़ द क्वेश्चंस विच डिफाइन द डिफिकल्टी. आपको रनिंग आई स्पीड में रीड करने की आदत डालनी चाहिए टू मेक श्योर दैट यू रीड द पैसेज एटलीस्ट 3 times if the passage is short. And this I have told you in the previous video also of CLAT 2023 as well. And always remember this, please remember this, if you read the questions beforehand, it is always a game changer when it comes to CR and when it comes to GK. These are the 2 sections where reading the questions beforehand is always the game changer, because you don't have to understand everything. You have to understand that where answers are hidden. You just have to know where answers are hidden. You will focus only there while reading. So these are the few tips and tricks that will always help you in preparing for this examination. Do tell me in the comment section if you are facing any challenge. बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारे साथ engage करिए, हमारे साथ participate करिए. आपके comments को हम take up करेंगे, आपके queries को हम resolve करेंगे, 1-to-1 करेंगे, वीडियो बना के करेंगे, आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके करेंगे. बट प्लीज़ टेल कि आपकी दुखती नब्ज क्या है, आपको तकलीफ कहाँ हो रही है, उसका समाधान हम आपको देंगे. सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट.